Hello children, welcome back. Today we are going to study subject English from Beehive book. Chapter number 3 is poem, that is Rain on the Roof. Okay, from the book Beehive. Poem is written by Coates Kinney, is the poet of the poem. So, if we talk about him, he is a lawyer, politician, journalist as well as a poet. So before starting the poem, I want you to take out your textbook and turn to page number 41. I am going to read the poem as well as going to explain it also. So you also have to look into your textbook. First of all, we will see the word meanings, which is on page number 42. Tinkle means short, light ringing sound. Shingles means rectangular wooden tiles used on roofs. Woof means weft. Here the threads woven across the loom. Air means old poetic word for before. Refrain means a repeated part of a song or a poem. And the last is list, means old poetic word to listen. Okay, now we are going to start the poem. Poem is about rainy season. Okay, you can see the title, it is rain on the roof. Okay, so rainy season जब होता है, बारिश जब आती है तो क्या होता है? And mainly it is talks about feelings of the poet. Okay, so let us see. When the humid shadows hover over all the starry spheres, and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears. Poet says that first of all there was stars twinkling in the sky, but as and when the clouds came, stars were not there. सब hide हो गए, ठीक है? Then it creates a sadness in the heart of poet, क्योंकि सब stars गायब हो गई। और आगे ऐसे कहा गया है कि जो रेन जो हो रही है उसके बाद जो बारिश आती है, सो पोएट के लिए वो ऐसे कंपेयर करती है कि जैसे पोएट सैड है तो बादल भी उसको सपोर्ट कर रहे हैं सैड होने में, और जैसे वो भी रो रहे हैं, जैसे देयर इज रेनिंग, इट इज रेनिंग, जैसे वो भी रोते हैं इन हिज सैडनेस. What a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead. लेकिन आफ्टर सम टाइम व्हाट हैपेंस ओवर हियर, उसका सैडनेस जो है वो हैप्पीनेस में चेंज कैसे होता है? व्हेन द रेन स्टार्ट्स, रेन का जो नॉइस है यहाँ पर, इट इज सेड दैट पैटर ऑफ सॉफ्ट रेन, पैटरिंग ऑफ रेन, बारिश गिरने का जो आवाज है कहाँ है? इट इज ऑन द रूफ, ठीक है? रूफ के ऊपर जो बारिश गिर रही है छत के ऊपर, इट क्रिएट्स अ वेरी सॉफ्ट एंड ब्यूटीफुल साउंड फॉर हिम, जिससे वो खुश हो जाता है. And he is lying in his bed along with his pillow, pressing the pillow. Now second stanza. Every tinkle on his shingles has an echo in the heart. जैसे रेन जो है वो पैटर कर रही है, मतलब साउंड कर रही है, जैसे बारिश गिर रही है रूफ के ऊपर, सो मानो उसके साथ साथ, ठीक है, जैसे इफ यू हियर, ओके, अगर आप सुनो बारिश की आवाज बाहर पतरे के ऊपर आ रही है, घर के रूफ के ऊपर आ रही है, यू कैन एबल टू हियर हेवी ड्रॉप्स की जो आवाज होती है, इट इज कंपेयर्ड विद हिज हार्ट बीट. जैसे वो रेन हो रही है वैसे उसके हार्ट भी बीट कर रहे हैं, ऐसा वो फील कर रहे हैं. एंड अ थाउजेंड ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट एंड अ थाउजेंड रिकलेक्शंस वेव देयर एयर थ्रेड्स इनटू रूफ एज आई लिसन टू द पैटर ऑन द रेन अपॉन द रूफ. जैसे वो बारिश की उस आवाज को सुन रहा है, द पैटर ऑफ द रेन, मेमोरीज उसकी ताजा हो रही है. ही कुड एबल टू रिकलेक्ट ऑल हिज मेमोरीज, जब वो व्हेन ही वाज अ चाइल्ड, बचपन की यादें उसकी जो है वो ताजा हो रही है. और वो यादें कौन सी है? थर्ड स्टैंजा. नाउ इन मेमोरी कम्स माय मदर एज शी यूज्ड इन इयर्स अगॉन. सो ढेर सारी मेमोरीज की रिकलेक्शन हो रही है, मतलब इमेजिन कर रहे हैं अबाउट हिज चाइल्डहुड डेज. उसमें एक काफी स्ट्रॉन्ग मेमोरी है, वो है रिगार्डिंग हिज मदर, एंड इट इज अबाउट हिज चाइल्डहुड डेज. टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स ere she left them till the dawn. Oh, I feel her fond look on me as I listen to this refrain.
which I played upon the shingles by the patter of the rain. So poet कहते हैं यहाँ पर when he was child, उसके जितने भी ब्रदर सिस्टर वगैरह होंगे, at the night time when children were sleeping, mother जो है continuously उनकी देखभाल करती है, ठीक है, वो एक सेकेंड भी अपने बच्चों को दूर नहीं करना चाहती है. Here so poet अपने love of mother यहाँ पर वो डिस्क्राइब करते हैं, love of his mother in the third paragraph. As and when, again last line में वो कहते हैं which is played upon the shingles by the patter of the rain. जैसे बारिश की बूंदें गिर रही है, as the rain patters, उसका जो साउंड आ रहा है, वैसे his memory जो है regarding his childhood days जो है वो राइज हो रही है. एंड उसमें उसने फोकस किया है लव ऑफ हिज मदर, ठीक है, जैसे वो बारिश की बूंदें जो है वो कंपेयर करते हैं यहाँ पर हिज मेमोरी. एंड पोएम इन दिस वे कंप्लीट्स ओवर हियर. ओके स्टूडेंट्स, सो मेन इन दिस पोएम द पोएट ने जो है वो कंपेयर किया है द रेनी सीजन, द रेनफॉल, द रेन ड्रॉप्स ओवर द रूफ ऑफ द हाउस एंड इज कंपेयर्ड विथ हिज ओल्डन मेमोरीज. जैसे वो बारिश की बूंदें सुनाई देती है, वो ही गोज बैक टू हिज ओल्डन चाइल्डहुड डेज. एंड पोएम जो है यहाँ पर खत्म होती है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.